اسرائیل کی امریکہ ایران ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش۔ مفاہمتی عمل مکمل ہونے سے پہلے ایک بار پھر بیروت پر میزائل داغ دیے۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ صہیونی حملے میں 3 لبنانی شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ایک بار پھر شٹ اپ کال دے دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں، جس سے لبنان سمیت پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ اسرائیل کو بیروت پر آج کا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر واضح کیا کہ لبنان پر دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حزب اللہ سمیت کوئی بھی اسرائیل پر حملے نہ کرے۔ اسرائیل نے جس حملے کے جواب میں کارروائی کی وہ بہت معمولی تھا۔ اس حملے کو امن عمل میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ معاہدہ امن کے آغاز کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، اگر امریکہ میں وعدوں پر عمل درآمد کی صلاحیت نہیں تو بات چیت جاری رکھنا ممکن نہیں۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دی کہ ہماری آنکھیں کھلی اور آنکھیں اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ حکومت نے سپریم لیڈر کی ہدایت پر مذاکراتی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنگ اور مذاکرات سے متعلق تمام فیصلے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں پر پابندی تمام دھڑوں کے لیے لازم ہے۔ ایرانی صدر کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے مذاکراتی وقت پر لگائے جانے والے الزامات کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ۔ ڈیل کے تحت ایران جوہری ہتھیار بنائے گا، نہ ہی حاصل کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی اہم شقیں سامنے آ گئیں۔ افزودہ یورینیم کے طریقہ کار اور نفاذ پر 60 دن میں بات چیت کی جائے گی۔ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران بھی اپنے ہرمز کو فوری کھول دے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تیل کی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے ایران کے $25 ارب مالیت کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ نئی پابندیاں عائد نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، معاہدے کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شک MOU کا حصہ نہیں۔ اگلے 1-2 دن میں معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ سنبھلتی ہوئی MQM پاکستان ایک بار پھر اندرونی کشمکش کا شکار۔ چیئرمین شپ کے لیے MQM میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، نام لیے بغیر ایک دوسرے پر کڑی تنقید کی۔ کس نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا۔ سب کو پتا ہے جو بناتا ہے وہی چلا سکتا ہے، چاہے گاڑی ہو چاہے ہوائی۔ جس کے پاس کردار نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، جو گاڑی چلانے والا کیپٹن ہے گاڑی تو چلائے، وہ گاڑی نہیں چلا رہا، قوم بیٹھی ہوئی انتظار میں کہ کب گاڑی چلائیں گے تو منزل پہ پہنچے گا۔ ابے تو ہم بیٹھے رہے۔ جو بدعتیں آ گئی ہیں ان بدعتوں کو نکالنا۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہو۔ جس کے دل میں ذمہ داری کا شوق آیا وہ This must stop now۔ قوم جو ہے وہ کھائی میں گر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں، بالکل نہیں چلے گا یہ۔ اگر ہمیں کہیں کہ مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنوا دوں۔ یہ عہدیداروں کی جماعت نہیں ہے، ذمہ داروں کی جماعت۔ یار یہ کوئی کسی کی جاگیر ہے، اپنی جائیداد میں لکھوا کے لے کر آئے تھے MQM۔ ہم سے زیادہ قربانی ہے MQM کے لیے۔ چیئرمین شپ کے لیے کرتے ہوتے ابھی 2 منٹ لگیں گے چیئرمین شپ لینے میں۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیئرمین شپ پہ۔ ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ FBR نے تجویز دے دی، اپنے کاروبار کو FBR کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر منسلک نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز کیا گیا ہے اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ جعلی یا فرضی رسید اور ٹیکس میں فرق پر بھی جرمانے ہوں گے۔ سپلائر سے جعلی رسید لینے والے خریدار بھی جرمانوں کی زد میں آئیں گے۔ ٹیکس کریڈٹ 60 دن میں واپس نہ کرنے پر 20% اضافی جرمانہ کیا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے پیکٹ بند اشیاء خورنوش، بچوں کے فارمولا دودھ، مٹھائیوں، تیل، برانڈڈ جوتوں اور کپڑوں سمیت 3000 سے زائد چیزوں پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ FBR کو اس اقدام سے 60 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ وزیر خزانہ کی تاخیر سے پہنچنے پر اراکین نے برہمی کا اظہار کیا۔ سلیم مانڈوی والا نے اجلاس کی کارروائی عارضی طور پر روک دی۔
बजट में अवाम पर इजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया। हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत की 2/3 आमदन कर्जों पर सूद की अदायगी में खर्च हो जाती है। आमदन देखें जो वफाकी हुकूमत की है, ये तकरीबन 11,750 अरब के करीब, 8,000 अरब सीधा इंटरेस्ट में चली जाती है। हुकूमत के अपने खर्चात 1,070 अरब हैं। आज हुकूमत अपने ऊपर कम खर्च कर रही है और पेंशन पर ज़्यादा अदा कर। डेवलपमेंट के खर्चात से आज हुकूमत चलाने के खर्चात दुगने से ज़्यादा है। ऐसी सूरत में क्या मुल्क के अंदर तरक्की हो सकती है? कर्जा जो मुल्क का है हर साल बढ़ता जाए। दावा किया गया है कि 360 अरब की रिलीफ दी जा रही है, ज़्यादा हकीकत नहीं है, क्योंकि 2460 अरब की एडिशनल टैक्स पाकिस्तान के अवाम इस साल बर्दाश्त करें। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए 4 बदतरीन साल हैं। वफाक कंगाल है और सूबे जो वो लेन देन का मामला कर रहे हैं। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब तक आप मुल्क के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं। आज़ाद कश्मीर में नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। रावलाकोट में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग की। 30 से ज्यादा गोलियां मारी गईं। पुलिस बख्तरबंद पर गोलियों के निशानात भी वाज़ेह हैं। ज़राए के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्ला जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए थे। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना की एक ऑडियो में शरपसंदी की धमकी दी गई थी। अवामी हकूक की आड़ में मुसल्ला कार्रवाइयां, जलाओ घेराव ही इस इंतशारी कमेटी का असल चेहरा है। कलअदम कमेटी मुसल्ला जत्थों के जरिए आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने के तरपे है। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। कहा, कानून हाथ में लेने वाले खुद को मकामी हुकाम के हवाले कानूनी अमल का रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। मसाइल के हल का फोरम पार्लियामान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान और अमेरिका का इस्लामाबाद माहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में इजहार निदामत, माफ़ी भी मांग ली। कहा, बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में बोले गए अल्फाज जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। मैं इमरान शेख मीरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। मुर्खा 10 जून 2026 को बरतानिया कौंसलेट के बाहर, बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मैंने जो अल्फाज और बयानात दिए वो सरासर जज्बात पर मबनी थे। कुछ मीडिया न्यूज और सोशल मीडिया की फेक न्यूज पर ऐसा अमल सरजद हो गया। मैं अपने इस पैगाम की वसातत से IG आज़ाद कश्मीर और ब्रिगेडियर साहब से दिल की अथाह गहराइयों से माजरत चाहता हूं कि मेरे उन बयानात की वजह से उन्हें दिली सदमा हुआ। मैं एक मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान की सलमियत के लिए अपना तन मन कुर्बान कर सकता हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में इजहार निदामत, माफ़ी भी मांग ली। कहा, बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में बोले गए अल्फाज जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। माजी में कराची उन लोगों के पास रहा जो सिर्फ लड़ना और लड़ाना जानते थे। वो आज भी लड़ रहे हैं। वज़ीर आला से मुआद अली शाह की नाम लिए बगैर MQM पर तनकीद। बोले, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाब का बायकॉट किया वो भला शहर कायद को क्या देंगे? न इनका पहले कोई हिस्सा था न आइंदा होगा। पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोताहियां हैं इधर, जो कि सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसलिए कि ये शहर हवाले हो गया था उन लोगों पे जो काम करना नहीं जानते थे, जो सिर्फ लड़ना और लड़ाना जानते थे। और आज जाहिर भी हो गया, आपने देखा होगा सुबह से लड़ रहे हैं आपस में।
के जो अंदरूनी इख्तिलाफात है ना, कराची के किसी शहरी के खेत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, उनका पहले कोई हिस्सा था कराची में ना आगे होने जा रहा है। पता कर लेना क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है। बल्दियाती इंतखाबात जब लड़ने जा रहे थे मैं साथ था, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लड़े नहीं, बाइकआउट कर गए। क्यों बाइकआउट कर गए? एक साहब आए थे, उन्होंने पता नहीं कितने 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए की पैकेज देके गए, 11 रुपए नहीं दिए। बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में आती। इशारा भुट्टो बना, अगर उसको पसंद नहीं है ये मंसूबा तो भाई अपने घर में बैठे और अपने मसले और हल करे। फूट पड़ रही है यार, अपने संभाले अपने घर। सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी पहले एमकेएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, अब तो उनका अपना मेयर है, अब काम क्यों नहीं हो रहा? हम कायद आज़म के पाकिस्तान में आए थे, बदकिस्मती से भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। पहले कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे थे। इतना अमन था, इतनी खुशहाली थी। जो कमबख्त एमकेएम कहाँ से आ गए? कराची में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो कराची वाले पागल हो गए थे, एमकेएम को लेके आ गए। कराची में आज जितना है और जैसा है उन्हीं अखबार में जब एमकेएम रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एमकेएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना यहाँ पर, तो अब काम क्यों नहीं हो रहा? सबकी बड़ी मेहनतों से और बड़ी मोहब्बतों से कराची का ये हाल हुआ है। हमारे अजदाद तो कायद आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला है। एमक्यूएम ने इस कराची को चंद साल में दुनिया के 11 इमर्जिंग सिटी में बना दिया था, आज वर्ल्ड सिटी में। वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी अपने आबाई वतन में छुट्टियां गुजारने, अपने लोगों के दरमियान यादगार पल गुजारने, मगर इसे क्या मालूम था कि इस सफ़र का इख्तिताम एक कब्र पर होगा। ये कहानी है 9 साल की हानिया अहमद की, जो चकवाल में सीसीटीवी एहलकार की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग में ज़िंदगी हार गई। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। फिर फायरिंग के मनाजिर हैं, गोलियां ज़मीन पर लगती हैं, चिंगारियां फ़ज़ा में बिखर जाती हैं। फिर एक और कैमरा मंजर महफूज करता है जहां गाड़ी कहीं जाकर टकराती है और धुआं उड़ता दिखाई देता है, मगर इस धुएं से कहीं ज़्यादा गहरा धुआं अब सवालात का है। अगर हर मुश्तबा गाड़ी का फैसला गोली करेगी तो अदालतें, तफ्तीश और कानून की हुक्मरानी कहाँ खड़ी होगी? चकवाल में सीसीटीवी एहलकार की मुबैना फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया पलट 9 साल की हानिया अहमद की हलाकत का मामला, मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर दी गईं। सीसीडी ने मुलविस एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने बच्ची के जख्मी वालिद अदील का बयान भी कलम बंद कर लिया है। जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए, जबकि मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। ज़राए के मुताबिक मुबैना डाकू मोहम्मद फयाज और मोहम्मद अब्बास मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। उधर एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा खानदान के घर आमद, कहा सीसीडी अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा, मुलविस एहलकार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हानिया अहमद की मौत का बेहद अफसोस है, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे।